Hi, this is Ishan from Rev Sports. I'm standing right outside the Trident Hotel at the moment. I just attended a lovely felicitation taken by the SBI Group for the Paralympic athletes, the winners, the bronze medalists, the silver medalists, and of course the gold medalists as well. It took place here in the Trident Hotel, and overall it was just a fantastic event. It started off with a lot of dance, some stories were spoken about, interesting anecdotes as well, and the whole event was just beautiful. I think it's so important to give that same sort of respect and love to our Paralympic athletes as well, who've gone on to do wonders in the Paralympic Games. We've had some fantastic athletes come off the roof and really impress with their performances. So being a part of this event tonight was truly special. We managed getting glimpses of what it actually takes to become a Paralympic athlete, the hardships one has to go through to eventually go on and do well for your country. A lot of stories were also spoken about the different battles that had to be won, and overall just super inspiring and super interesting as well on how these athletes have actually overcome those battles to go on and do wonders. Besides that, the SBI Group also promised and ensured that the support will always be there, and the athletes as well took the platform as a way to promote different sports and also motivate young youth. I think it's so important that the youth of today is highly motivated, and especially with stories like this coming off the roof, this is what the country definitely needs. I think in the coming years we can expect a lot more Paralympic athletes doing wonders for India and even achieving great feats and possibly amassing even much more and many more goals. So overall, just a fantastic event to be a part of. A lot of excitement around this event as well. Everyone was thrilled to be a part of such, winners and champions in every respect. So great initiative. Sumit Until spoke to Rev Sports as well, so you can catch that exclusive interview, right after this PTC is also over. So enjoy and make sure you like, share, subscribe, and stay tuned to Rev Sports. Thank you. Hi, this is Ishan from Rev Sports. मेरे साथ है सुमित भाई. सुमित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत सारी सक्सेस आपने पा ली है. पहले तो फीलिंग क्या है, हाउ इज इट फीलिंग, और सिंक इन हो चुके हैं अब तक? सॉरी। सिंक इन हो चुके हैं अब तक ये सारे फीलिंग? हाँ। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले थैंक यू। और काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने देश में मेडल जीतने के बाद मेरी रिकॉग्निशन मिलती है और लोग प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। और टोक्यो में भी गोल्ड था, पेरिस में भी गोल्ड है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि बैक टू बैक देश को 2 गोल्ड मेडल दिए हैं और पैरालंपिक्स जैसी बड़ी स्टेज पे और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए मोटिवेट करती हैं सारी चीज़ें। जब लोग प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा देश को मान सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल. सुमित भाई, आपके फ्यूचर प्लान्स बेसिकली क्या रहेंगे? आपको क्या करना है फ्यूचर में? आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? आपने कुछ प्लानिंग की है अब तक कि फिलहाल नहीं? नहीं, मेरी टीम ने पूरी प्लानिंग कर लिया है कि हमें कहाँ कब अपनी पीक निकालने हैं। हम अभी तो थोड़ा बैक में पिछले साल मेरे काफ़ी इंजरी रही है, तो अभी उसको ठीक कर रहे हैं, बट कोशिश करेंगे कि सीज़न ओपन बहुत ही अच्छी तरह से करें। और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, दिल्ली में ही है, तो इंडिया फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट होस्ट करवाने जा रहा है, तो अपने लोग होंगे, सब अपना होगा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और कोशिश करूँगा कि लोगों की उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल. और ट्रेनिंग में अभी कोई चेंजेस आएंगे फ्यूचर में? आप सेम ट्रेनिंग करोगे? ट्रेनिंग में कोई बदलाव आएंगे? नहीं, कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं जो मैंने और मेरी टीम ने फिगर आउट किए हैं, जिसमें हम पिछली बार थोड़ा लैग कर गए थे। हालांकि हम पैरालंपिक्स में काफ़ी अच्छी तरह की उम्मीद कर रहे थे, बट कुछ सिचुएशन होती है, कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से जितनी थ्रो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालांकि गोल था मेरा, पैरालंपिक रिकॉर्ड था, तो खराब नहीं बोल सकते उसे, बट जितनी हम उम्मीद करके ले गए थे उतनी नहीं लगी। कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पे छिपी रह गई थी उसको आने वाले टूर्नामेंट्स में दिखाएं। बिल्कुल. लास्ट 2 सवाल सुमित भाई, बहुत सारी बातें होती है फैसिलिटीज के ऊपर, आपकी क्या राय है उसके बारे में? फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं अभी पैरालंपिक्स में, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फैसिलिटी के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, जब रिकॉग्निशन बढ़ती है तो लोगों की नज़रों में आते हैं सब, और उससे फैसिलिटीज मैं 2017 से पैरा स्पोर्ट्स में काफ़ी चेंज हुए जी. और पॉजिटिव चेंज काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और जिस तरह से हमारी फेडरेशन मदद कर रही है, सारी सपोर्ट कर रही है हमें हर एक उस पर। हम टॉप स्कीम में भी हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और
हमारे साथ साथ ये जूनियर एथलीट्स को भी आई थिंक मोटिवेट करता है कि हमें भी जैसे टॉप स्कीम की बात ले लो कि हमें भी टॉप स्कीम में आना है, हमें भी मेडल लेके आना है, और मतलब ये सारी चीजें हमें भी मिलेंगी। लास्ट क्वेश्चन सुमित भाई, आप एक इंस्पिरेशन हो अभी, तो कैसे लगता है, और फाइनल मैसेज हमारी यूथ के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, जो ज्यादा गोल्ड मेडल पाना चाहती है देश के लिए ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, फाइनल मैसेज आपका क्या है? सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ही इकलौता एक ऐसा रास्ता है जिसे आप चुन के सक्सेस पा सकते हो। आई थिंक ओवरनाइट सक्सेस एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। मेहनत करें, सच्चे मन से करें और पेशेंस रखें, क्योंकि अगर जो आपका सपना बड़ा है तो बड़ी चीज़ें होने में टाइम लगता है। तो पेशेंस रखें और लगे रहें बस, तो सक्सेस एक ना एक दिन जरूर आपकी होगी। सुमित भाई, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।